Hi guys, so it's like one believable lenses. ठीक है अब हम Hi guys, hope you're doing really great. So today I again came on my video because I already told you that I'm gonna make a YouTube video on you know trying to make a YouTube video और मैं अभी कर भी रही हूँ उसको because I think अभी एक month भी नहीं हुआ. It's like 5 or 4 days कि मैंने एक वीडियो पोस्ट की है. No, it's like 1 week कि मैंने एक वीडियो पोस्ट की है, but now I'm gonna again create a good video. So let's start with that. I'm wearing a white color suit. You'll see it at the end of the video because abhi to I'm not going to show you like what I'm wearing properly, but it's going to be a off-white color suit and you guys gonna love it. So I'm gonna create a good look on that, like soft smoky eyes with some, let's see, nude lips or something like that, some peachy kind of look. So you guys can also do it for your um like if you are visiting to your relative wedding or something like that, for your friend wedding you can do that same look. So I'm going to create that, and just stay tuned, watch the video till the end so that we'll get to know that exactly what I'm doing in my this video. So obviously you have to watch the entire video for that. If you're not gonna watch that, then you are not gonna learn anything, right? So okay, let's start, and I'm gonna create some very good and elegant look at the same time because I'm wearing off-white and off-white always shows up. Okay, so let's start with the video. So I wore now a believable lenses. I think I mean, it's looking good on me, but once the makeup is done, it's going to look really pretty. But right now, it's feel like that, it's just like more different from my eyes. But I really like these lenses, so that's why I use it, and it is giving me a compliment. Like my outfit is also, similar to that. So it's, I think, a luminous brown. I don't know what's the exact shade name is, but it is from Fresh Look basically. So Fresh Look launches their new lenses. I mean, no, it's from Aqua lenses. So Fresh Look के lenses तो बहुत decent होते हैं, but these Aqua lenses is something very different. ये एक new launch है Aqua lenses का. मैं आपको दिखा दूंगी कि मेरे पास wrapper होगा उसका. Otherwise I'll mention it in the video, so you guys can check it out. और ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू क्लीन माई स्किन, एंड देन आफ्टर आई एम गोइंग टू डू माई एंटायर मेकअप. सो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम अपने फेस से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे आईज पे. सो नाउ आई जस्ट क्लीन माई फेस, और इसके बाद आई एम गोइंग टू डू माई मेकअप. And for the makeup, as I already told you that I started from my face. So for the face, I am using this Embroily's moisturizer. So it is good for the summers also. वैसे हम winters में भी use करते हैं, but summers में भी मेरे को ये बहुत suit करता है. Even for my skin, even though I can use on my bride also. So अभी आज की look के लिए I'm again using this Embroily's moisturizer. Cetaphil भी like you guys can use, but you guys can use in winters only. सो आई कैन सजेस्ट कि आप एम्ब्रॉयलीज यूज करो, बिकॉज जितना वाटर बेस्ड प्रोडक्ट होता है ना उतना ज़्यादा बेटर रहता है फॉर द समर मेकअप. सो जनरली होता क्या है ना, I'll tell you, it just all depend on your, like people will do primer and they'll use like sort of toner or something like that, but like as my skin is already nice, thank you, like my skin is good, like I do a regular skincare, so it's not required that I'll use toner or something like that. मैंने सिर्फ अपना फेस क्लीन किया, उसके बाद मैंने मॉइस्चराइजर लिया, और उसके बाद भी मैं कोई भी प्राइमर यूज नहीं करूंगी. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर मेकअप में प्राइमर ही यूज करो, बिकॉज द पॉइंट इज प्राइमर का काम क्या होता है, आपके मेकअप को एक तो पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर आता है बेसिकली. वो क्या करता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है, विच यू यूज हेयर, लाइक पीपल हैविंग अ लाइक पोर्स हेयर ओनली. सो एक तो वो होता है, दूसरा होल्डिंग का काम होता है, मेकअप होल्डिंग. आप अच्छे से मेकअप करोगे वैसे भी आपका मेकअप होल्ड रहेगा, तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू ऑलवेज हैव टू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर. सो अभी थोड़ा सा लिप्स पे भी कर देते हैं, सो दैट लिप्स ऑल्सो गेट्स हाइड्रेटेड. समर्स में ना बहुत ड्राई होती है लिप्स, इतना विंटर वाले तो बहुत अलग होते हैं, बट ये समर्स वाले जो ड्राई होते हैं ना लिप्स, ये बहुत ही गलत होती है. लेंसेज में ना मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है और थोड़ा थोड़ा नहीं दिख रहा है. सो आप लोग ऐसे ही देख लेना वीडियोस ना, तो ज्यादा ज्यादा बेटर रहेगा, because the point is that you have to see a makeup only, then ignore the mess. Okay, so as I told you that I'm gonna do a face. So for the face I am gonna use a darker
tone, like darker colors, just to conceal my areas. So जैसे you guys can see यहाँ पे pigmentation है बहुत light, अंडर आई का कलर बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, तो हम कलर करेक्शन नहीं करेंगे. लाइक यू हैव हर्ड अ लॉट फ्रॉम पीपल कि पहले हम कलर करेक्टर करते हैं, देन विल डू अ कंसीलर, देन विल डू एंटायर मेकअप. But it is not necessary that you have to use always a color corrector or a concealer. Concealer you have to use, but not a color corrector all the time. So here I'm using, that is a face base foundation from Flickr. So face base foundation from Flickr. So मैं ये as a concealer use कर रही हूँ, और this is the darker shade. मेरी स्किन से ये काफी डार्क है, just which I can use for the concealing purpose. So I'm just using a very little bit of foundation, base foundation, because see, you can also use foundation जिसकी coverage बहुत अच्छी होती है for the concealing purpose. The main criteria, like the main picture of the story is that you have to conceal the areas, and that's it, whether it is concealer, whether it is foundation. So now I'm using this Flickr base foundation just to cancel out my discoloration. So ये मैंने थोड़ा सा अंडर आई पे यूज करा है, उसके बाद मैं थोड़ा सा और यूज करूंगी ऑन माय अंडर आई ओनली. ये ना बहुत पिगमेंटेड होते हैं, हम थोड़ा सा पिक आउट करते हैं और ये इतना ज्यादा आपकी स्किन में लग जाता है. सो आपको बहुत ध्यान से इसको इस्तेमाल करना है, नॉट बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं लगाना है. सी, मैंने बहुत थोड़ा सा लिया था, बट स्टिल बहुत ज्यादा लग गया है, बट स्टिल कोई बात नहीं, विल मैनेज. लाइक मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अब, या इसको बहुत अच्छे से. और वैसे भी आज का जो बेस होगा ना वो थोड़ा सा हैवी होने वाला है फॉर द ब्राइडमेड्स, लाइक ऑल द ब्राइडमेड्स जो नहीं चाहती ऑल द टाइम सैलून्स जाना या मेकअप आर्टिस्ट से रेडी होना. सो दे विल डू देयर मेकअप बाय देमसेल्व्स ओनली एट होम. सो दिस वीडियो इज फॉर दोज ओनली. सो थोड़ा सा मैंने फॉरहेड पे भी यूज किया है, बिकॉज फॉरहेड पे भी डिस्कलरेशन है. एंड देन अगेन आई एम यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर, because beauty blender, why I'm using a beauty blender, because मैं इसकी जगह ब्रश भी यूज कर सकती थी. इट इज अ बेस, इट इज अ सॉलिड फॉर्मेट, जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा क्रीमी वीकेंड से, और क्रीमी को ब्लेंड करने के लिए देखो लिक्विड तो ब्रश से बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है, बट अगर आप क्रीम को ब्लेंड कर रहे हो बहुत अच्छे से तो आप ब्लेंडर से ही कर सकते हो, आप ब्रश से नहीं कर सकते. ब्रश से करोगे तो लाइंस क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज द फॉर्मूला इज क्रीमी. So now I'm already done with the under eye और forehead वाला part. अब हम लोग करेंगे chin area के पास जो discoloration है उसको balance out. So for the application I'm using my fingers only, because fingers है ना, आपको पता रहता है कि आपको कितना प्रोडक्ट पिकअप करना है. ब्रश में तो बहुत ज्यादा भी आ जाता है कई बार, बट फिंगर इज समथिंग यू हैव एन आइडिया. जैसे नमक का आइडिया होता है ना उंगलियों से, वैसे ही फाउंडेशन का भी आइडिया हो जाता है. सो फॉर ऑल द हाउसवाइफ दोज आर वाचिंग दिस, दिल नो कि चम्मच से इतना आइडिया नहीं होता जितना आप हाथ से डालते हो उसका आइडिया होता है. सो नाउ बैक टू द कॉन्सेप्ट जो हम कर रहे हैं. सो दैट्स हाउ माई बेस इज लुकिंग राइट नाउ, बिकॉज अभी क्या है, डिस्कलरेशन हमने बैलेंस आउट कर दिया है. सो यू गाइज कैन सी, कहीं पे भी ऐसा नहीं है मेरा कि बैलेंस नहीं दिख रहा है. इट्स लाइक इवन टोन, माई स्किन इज लुकिंग लाइक प्योर इवन टोन. अभी हम इसमें फाउंडेशन यूज करेंगे. सो द फाउंडेशन आई एम यूजिंग इज फ्रॉम Forever 52, or should I use from MAC? I'm confused. So let me use from Forever 52, because Forever 52 के foundations काफी अच्छे होते हैं. So let me try. Otherwise तो मैं just a minute, I have to figure out where it is. So I am using this Forever 52 Pro Artist Foundation for creating my base. So this is like similar to my skin tone. See, this is my this is similar to my skin tone. तो मैं थोड़ा सा brighten थोड़ा सा bright देख रही हूँ कि
something bright will come. Now let's compare which one is more closer. I think this one is more brighter, तो we'll go with this one because इससे ज़्यादा हम लोग लाइट नहीं लेंगे या इससे ज़्यादा डार्क नहीं लेंगे, क्योंकि अगेन मुझे डार्कर टोन तो नहीं बनाना है एंड माई स्किन इज़ क्वाइट ओके, इट्स नॉट वेरी ब्राइट, बट मेरा जो स्किन टोन है दैट इज़ लाइक मेरी जो अंडरटोन बेसिकली वो वार्म अंडरटोन है. जनरली लोगों की कूल होती है या इट डिपेंड्स, लाइक सबकी अलग अलग होती है. सो इंडियंस की आई गेस वार्म अंडरटोन होती है ज़्यादातर. So I'm using this foundation and I am applying it with the help of flat brush. इतना सारा तो अगर आपने मेरी वीडियोस देखी ना तो आपको पता होगा कि मैं कैसे प्रोडक्ट यूज करती हूँ, किस तरीके से मैं लगाती हूँ. सो आई एम जस्ट मिक्सिंग इट ऑन माई मिक्सिंग पैलेट. थोड़ा सा गंदा हो रहा है, ये हाथ लग गया. सो ओके, so I'm applying it because I am going to apply highlighter also. So मैं जो foundation लगा रही हूँ it's going to be very sheer. It's not a very full coverage नहीं कर रहे हम foundation से कि बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं. It's like very sheer coverage. Otherwise foundation Forever 52 का तो बहुत अच्छे से base cover कर देता है, मतलब आपके face base को. And you guys can see also, right? अब हम इसको beauty blender से ही blend करेंगे. वैसे मैं यूजुअली ब्रश प्रिफर करती हूँ, बट टुडे आई वांट वेरी शेयर कवरेज और ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी प्रोडक्ट ऑब्जर्व भी कर लेता है. सो आई वांट दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर फॉर ब्लेंडिंग पर्पस. सो on my this side I again using the flat brush for the application. नेक हम बाद में भी कवर कर सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि जब आप मेकअप कर रहे हो आप तभी कवर करो. इट्स लाइक वंस योर मेकअप इज डन आफ्टर दैट नेक कवर करना बहुत ज़रूरी है. ऐसा ना लगे कि आपका जो आपका जो नेक का कलर है दैट इज़ लाइक वेरी डिफरेंट और आपके फेस का कलर बहुत डिफरेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो पहले हम लोग इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग नेक पे जाएंगे. अभी तो ये ऐसे ठीक है. सो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा यहाँ तक, बिकॉज मैंने बहुत ही इजी टेक्निक्स बताई है ताकि अगर कोई मतलब कोई नॉर्मल इंसान भी है जिनका मेकअप में दूर दूर तक कोई नाता नहीं है मेकअप से, तो दैट पर्सन ऑल्सो लर्न द मेकअप. बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कुकिंग के लिए भी वीडियोस देख लेते हैं, तो मेकअप के लिए भी यू कैन सी द वीडियोस, राइट? So now you guys can see my base is looking like this. Yes, अभी तो थोड़ा हॉरर लगता है. मतलब इनिशियली वो मेकअप लुक, क्योंकि आप बेस कलर मतलब आप कलर टोन डिफरेंट कर रहे हो, तो इट विल लुक थोड़ा सा थोड़ा सा आपको लगेगा हॉरर हॉरर वाला, लाइक सम पीपल विल. बट अगर आप रेगुलर मेकअप करते होगे तो आपको आइडिया होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप हॉरर लगोगे आगे जाके. नाउ फॉर द नेक आई एम यूजिंग दैट फ्लिका बेस फाउंडेशन अगेन, बिकॉज मेरे को नेक कवर करनी है. देयर इज नो डिस्कलरेशन, सेम कलर है, तो नेक कवर करने के लिए आई एम यूजिंग दैट विद द हेल्प ऑफ ब्रश. बिकॉज अभी यहाँ पे तो हम ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं लगा सकते क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है. जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे यू कैन प्ले विद द ब्रश. So now I'm done with my neck area. अभी प्रॉपर अच्छे से मैं बाद में कवर कर लूँगी, बट अभी तो ये कर लिया है. अब इसके बाद I'm using a highlighter. Sorry, for the highlighting I'm using this vanilla shade from अगर if you guys watching my video all the time तो आपको पता होगा कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ. So कमेंट तो नहीं करोगे, मैं बता ही देती हूँ. like Too Faced. I really love these concealers. लाइक देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट जो मैं बहुत पसंद करती हूँ टू फेस्ड के, बट उनमें से सबसे ज़्यादा जिसे मैं पसंद करती हूँ वो दीज कंसीलर्स. अब हम थोड़ा सा अप्लाई करेंगे ऑन माई अंडर आई जस्ट टू हाईलाइट इट ऑन माई नोज एरिया, बेसिकली टी जोन एरियाज, सम हेयर एंड सम ऑन द चिन. सो इस तरीके से हुला लला बनना है. अभी तो लग भी रही हूँ हुला लला, मतलब वो जंगलों में नहीं होते जैसे उस टाइप में.
फिर अब बिकॉज दिस इज अ लिक्विड प्रोडक्ट बेसिकली, सो मैं इसको ब्लेंड करती हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश। और जो भी एक्सेस आपके पास बच जाता है उसको आप अपनी आईज पे यूज कर सकते हो, ऑन योर आईज, समथिंग लाइक दिस। यस, ऐसे। सो नाउ यू कैन सी कि कितना अपलिफ्ट लग रहा है। मैंने सिर्फ हाइलाइटर इस तरीके से यूज किया है। तो अब हम अपना चिन एरिया भी ब्लेंड कर देंगे अच्छे से। then I'm gonna blend my this area, उसके बाद forehead, and then nose को हम लोग क्योंकि ब्रश से अच्छे से नहीं हो पाएगा इसलिए आई एम यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर हेयर। शेक हो गई आईज, आई बॉल्स मतलब। अब इसके बाद हम अब यहाँ से पता नहीं कौन सा ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से मेरी वीडियो आई एम जस्ट टॉकिंग बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। But anyways, I am just voice over on it so that you guys will learn the things in a proper way. So I'm here concealing, blending with the help of the concealer brush. I am blending it properly. वो obviously वो मज़ा तो नहीं आएगा जिससे मतलब चिट चैट करते हुए वीडियो बनाते हैं, but yeah, I'm trying to match the vibe. Okay, so let's properly start. So I just blending it with the concealer brush, and after that time to do the contour. So जितना हो सकेगा मतलब जितना मैं बता सकती हूँ, I'll just try to maintain the vibe because again थोड़ा सा मज़ा कम आएगा, but still let's make it done. Okay, so it's time for the contour because we already done with the highlighting. So for the contouring I use Recode palette where I use a dark brown color just to contour my areas. So हम लोग start करेंगे the starting of your ear to the ending of your cheek. यहाँ तक हम cheek पे contour करेंगे. And again whenever you're doing your makeup use a mirror because फ़ोन के कैमरा से नहीं समझ में आता है, that shows very bright face. And then it's time for the nose. And इस वीडियो में सिर्फ हम लोग फेस कवर करेंगे, we are not going to make any video of eyes and lips. वो मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊंगी उसके अंदर करेंगे because ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है ना, and it's quite get bored for you guys to watch till the end. So we just divided into two parts. Okay, so it's time for the contour. I told you that how to contour. नोज़ को थोड़ा प्रिसाइज करेंगे बिकॉज आई फील थोड़ा सा नोज़ मेरा it's like quite थोड़ा सा I can say in a larger way. Then I'm using, और मैं बहुत इंटेंस कंटूर नहीं करी बिकॉज आई डोंट रिक्वायर दैट मच. नोज़ को हम लोग काबुकी ब्रश से उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे. इट्स अ कंटूर काबुकी ब्रश एंड यू गाइज कैन सी हाउ प्रिसाइज माई नोज इज लुकिंग नाउ. एंड देन आफ्टर वो चीक वाला भी बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं किया है. इंटेंस किया होता तो बहुत आगे तक लागते. सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करना है इसलिए मैंने ब्लेंड कर रही हूँ तो उसको आगे ला रही हूँ. अदरवाइज जो फ्लैट ब्रश से हमने लगाया है वो थोड़ा पीछे ही लगाया है सो दैट इट लुक नेचुरल. और जो भी आपका एक्सेस बच जाता है ब्रश के अंदर उसको हम चिन में थोड़ा सा कर देंगे. एंड दैट्स इट. आई मीन नॉट रिक्वायर्ड अ लॉट सो व्हाई शुड वी पुट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट, राइट. जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी हमें प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत है. एज आई ऑलवेज टोल्ड कि हमें अननेसेसरी प्रोडक्ट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. एंड इट्स टाइम फॉर द ब्लश. सो फॉर द ब्लश आई एम यूजिंग Forever 52 लिप एंड चिक टिंट. दिस इज़ वेरी नाइस. आप इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी आती है. इट्स ईजी टू कैरी एंड ऑलवेज यूज़ अ ब्लश ओवर द कॉन्टोर. जब भी ब्लश लगाना है कॉन्टोर से ऊपर लगाना है. I always call it 3-finger rule that first you have to put a contour, then a highlighter, and then um, your blusher. Sorry, a contour, blusher, and then a highlighter. So that's a 3-finger rule basically. अगर कई बार आप भूल जाते हो so that's the way. पहले मैंने फिंगर से उसको अप्लाई किया एंड आफ्टर दैट आई एम अप्लाइंग विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर. ब्यूटी ब्लेंडर इसलिए भी ज़रूरी होता है बिकॉज कई बार क्या रहता है ना, फिंगर से पैचीनेस आ जाती है. वहाँ पे आपका फिंगर की इम्प्रेशंस नज़र आने लग जाता है बिकॉज दैट्स अ लिक्विड थिंग जहाँ पे हम काम कर रहे हैं. बट विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर वी ब्लेंड इट वेरी नाइसली. बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है वो और बहुत ही सीमलेस लगता है. इट्स नॉट लुकिंग लाइक कि आपने कोई भी प्रोडक्ट ऊपर से लगाया है. एंड इट्स अ नेचुरल थिंग, इट्स जस्ट अ लिक्विड थिंग सो ऑब्वियसली इट्स गोना लुक मोर प्रिटियर. सो इसके बाद हमारा जो लास्ट टास्क है दैट इज़ जस्ट टू ब्लेंड, सॉरी आफ्टर ब्लेंडिंग ऑल द स्टफ जस्ट पाउडर पुटिंग बिकॉज
after the liquid thing, we have to put a powder. We have to put loose powder just to lock our base. Otherwise, it's going to be cakey, as I always told. और जब भी हम मेकअप करते हैं, it's never be like कि हम ऐसे ही छोड़ देंगे. Like मैंने शायद एक इंसिडेंट भी बताया होगा कि एक बार एक क्लाइंट थी मेरी हु इज सेइंग कि मैं जब भी मेकअप कराती हूँ कोई लॉक नहीं करता. इट्स आप ये पाउडर प्रोडक्ट क्यों यूज़ कर रहे हो. सो आई जस्ट टेल देम कि ऐसा नहीं होता है. अगर आपने क्रीम प्रोडक्ट लगाया तो इट्स कंपल्सरी टू पुट अ पाउडर प्रोडक्ट. अदरवाइज वो डिस्प्लेस हो जाएगा. वो जो भी आपने प्रोडक्ट लगाया है वो आपकी स्किन पे रहेगा ही नहीं, वो चला जाएगा वहाँ से. बिकॉज इट्स अगेन क्रीमी. आप हाथ लगाओगे, जस्ट स्वाइप आउट. सो जहाँ पे भी लाइन है अगेन उसको ब्लेंड करना है बहुत अच्छे से. उसके बाद आपको पाउडर अप्लाई करना है, बिकॉज अगर आपने क्रीज में ही अप्लाई करते हैं तो वो वैसे ही स्टक हो जाएगा. सो फर्स्ट ब्लेंड इट प्रॉपरली एंड देन पुट द पाउडर ऑन योर ओवरऑल फेस. बिकॉज मैंने आइज़ पे भी यहाँ कंसीलर कर लिया, दैट्स वाई मैं आइज़ को भी पूरा अच्छे से कवर कर रही हूँ. और उसके बाद पूरे फेस में बहुत अच्छे से कवर कर रही हूँ. यू गाइस कैन सी कि कितना डिफरेंस आ रहा है. ये जो हमारा राइट साइड है दैट इज लुकिंग मोर मैट एंड द लेफ्ट साइड इज लुकिंग वेरी ग्रीसी, आई कैन से क्रीमी और लिक्विड टच दिखा रहा है. वो थोड़ा सा ऑयली ऑयली लग रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर आप हमारा राइट साइड देखोगे तो इट्स रियली डिफरेंट. जस्ट मैटिफाई, क्योंकि हमने प्रोडक्ट लगा दिया इसलिए जस्ट मैटिफाई. So that's the difference. When you put powder, you see your base is going to be matte, and when you're not putting it, you can see that it shows greasy, oily. Okay, so that's the difference, and I think that's enough for today. Our session, I would say, the makeup tutorial is going to end here only. So do subscribe my channel, show your love in the comment section. If you're not liking something, just comment down, because that is going to be really good for me to make other videos. So thank you so much. Stay tuned and stay connected, and lots of love. Bye.